If you're in your 30s and you're planning to marry a girl, this video is going to be a gold mine for you. You talk to a girl for a while, you ask them out for a date. किस तरीके से उस डेट को आप मटीरियलाइज करें, हाउ टू हैव एन इम्पैक्टफुल टाइम विद दैट ब्यूटिफुल पर्सन दैट यू आर अबाउट टू मीट एंड प्लान योर फ्यूचर विद. एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस वीडियो के पहले मैं देना चाहता हूँ. ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ थोरो जेंटलमैन whenever you're dealing with women, and especially the ones that you're planning to marry. Let's talk about 10 commandments for a man while courting a lady for marriage. Always stay real. आप show off मत करिए. If you show off to a woman at this particular time, you will set wrong expectations जो पूरी life would come back to bite you in the wrong time and wrong places. I have a lot of consultations with women when they say कि ये आदमी पहले इतना करता था अब नहीं करता, पहले तो ये बहुत रोमांटिक था अब नहीं है. इसीलिए आई वुड सजेस्ट ऑलवेज स्टे रियल विद द गर्ल दैट यू प्लानिंग टू मैरी. ना फालतू पैसा, ना अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ना बेकार के गिफ्ट्स, ना ओवरली एक्सपेंसिव वॉचेस, ना महंगी वाइन्स, नथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इन लॉन्ग टर्म. डू नॉट शो दैट टू दैट वुमन. Chivalry is not dead. Open doors, pull chairs. Let the woman know that you can take care of her. उसको मेन्यू डिसाइड करने दो. Whatever she wants, आप पहले hand over the menu to her and tell the waiter that lady would decide first. इससे the girl would understand that you are a thorough gentleman. Again, मैंने पहले ही कहा था, you always have to be that. So a girl would know that you can actually take care of her. पुट सम एफर्ट इनटू प्लानिंग द एक्सपीरियंस. देखो आप थोड़े टाइम से इस इंसान के साथ बात कर रहे होगे, द गर्ल दैट यू आर टेकिंग आउट, सो यू वुड हैव एन आइडिया व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट. इफ यू आर गोइंग फॉर अ कैजुअल डेट, यू गोइंग फॉर अ ड्राइव, यू गोइंग फॉर अ डिनर, यू गोइंग फॉर अ रेस्टोरेंट, यू गोइंग फॉर फाइन डाइनिंग, उस हिसाब से आप जगह डिसाइड कीजिए. मेक सम एफर्ट, मेक सम रिजर्वेशंस. टेक दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. कौन सी चॉकलेट्स उन्हें पसंद हैं, या फिर इन्वेस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर दैट. कौन से फ्लावर्स पसंद है, पहली डेट पे रेड फ्लावर्स नहीं देते, रोजेस नहीं देते. इफ यू वांट टू लर्न अ बिट मोर अबाउट फ्लावर्स, इन्वेस्ट सम टाइम. वाइट का क्या सिग्निफिकेंस है, येलो का क्या सिग्निफिकेंस है, लिलीज कब देते हैं, कार्नेशंस कब देते हैं. यू शुड नो ऑल ऑफ दिस. ऑलवेज स्पेंड टाइम ऑन मेकिंग द एक्सपीरियंस ग्रेट फॉर द वुमन. और जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो ना, तो द गर्ल वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार ये मेरी बात सुनता है. सो इट बिल्ड्स ट्रस्ट इन द स्टार्टिंग फेजेस ऑफ द रिलेशनशिप, जो कि आगे जाकर इट वुड रियली हेल्प द गर्ल अंडरस्टैंड दैट यू एक्चुअली really listen to her and that you are going to be there for her whenever she needs you. Always ask the hard hitting questions. देखो जो आप करने आए हो, to ask for the real questions in life, you should ask that. उसके आसपास do not dodge around, do not dance around, but always be graceful while asking such questions. Questions like, do you want to stay with my parents? Questions like, do you want to work after marriage? Do you want to have children after marriage? Where do you plan to stay? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, these should be asked gracefully and open-endedly so that you can have a polite discussion, and this would actually help you understand the psychology of the person sitting in front of you. देखो, if it doesn't work out, it doesn't work out. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% इसी इंसान के साथ करना है. Obviously you are actively looking, तो काफ़ी रिजेक्शंस भी होंगे, काफ़ी बारी आप भी रिजेक्ट होगे, but then do not take it too hard. Do have the hard-hitting discussions. Focus on the bigger picture and always be attentive to the conversation while you're having it. देखो, you want a कलेश free life. आपको आजकल, you already know that there is so much negativity in the market, marriage market that I'm talking about. आपको ये सब फेस नहीं करना है. Always be present in the moment. पूरी conversation सुनो. Look at her eyes where they are rolling. किस तरीके से वो बात कर रही है. Sense of entitlement कितना है. क्या किस तरीके से वेटर्स को वो ट्रीट कर रही है, किस तरीके से शी इज टॉकिंग टू यू, व्हाट आर हर एक्सप्रेशंस. ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बी सिचुएशनली अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर सिटिंग विद. वाइब्स भी आती हैं, बट देन अगेन जो चीज़ें साइंटिफिक नहीं है, वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट देन ऑलवेज ऑब्जर्व द पर्सन दैट यू स्पेंडिंग टाइम विद. आई कॉन्टैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक है, लेकिन लोगों को आती ही नहीं है.
मतलब अगर मैं आपसे ऐसे देख के बात ना करूं और ऊपर देखूं या इधर देखूं, तो you would not be very interested in the conversation. Similarly, girls have a beautiful bullshit meter. आप उनकी आंखों में देख रहे हो, आप किसी और लड़की को देख रहे हो, या आपने नीचे देखा cleavage, they would absolutely understand. Women can sense the intention of a man when he is talking to her in any environment. It could be a dinner, it could be an office environment, it could be in a public transport or anywhere. So do take care of your eye contact. Learn, read about it in case you don't know how it happens. आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे इस चीज में, इट विल बी अ सक्सेस मंत्रा फॉर लाइफ. शादी का तो छोड़ो, पर पूरी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा. लर्न टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट. आज की डेट में ना, बिकॉज ऑफ द कूल स्टार्टअप्स एंड द हुकअप कल्चर एंड एवरीथिंग, पीपल डू नॉट फोकस मच ऑन पावर ड्रेसिंग. हम जब एमबीए कर रहे थे ना, देयर यूज्ड टू बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स. उसमें पावर ड्रेसिंग का स्पेशल एक पूरे का पूरा चैप्टर था. पावर ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज ड्रेस टू द ओकेजन. देखो, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट यू गाइज वांट टू डू. इफ इट्स अ कैजुअल मीटिंग, आप कैजुअली ड्रेस कीजिए. मे बी टी शर्ट, डेनिम्स, स्पोर्ट्स शूज. इफ इट्स अ फॉर्मल डिनर, आप किसी अच्छी जगह पे डिनर जा रहे हैं, डू मेक एन एफर्ट. आयरन दैट शर्ट, उसको ढंग से प्रेस करो. प्रॉपर एक ट्राउजर हो जो कि प्रेस्ड हो, शूज हो पॉलिश्ड हो, सॉक्स डाली हो आपने. एंड सिंस आई एम ओल्ड स्कूल, आई प्रेफर ऊंची वाली सॉक्स, बट लोग आजकल एंकल लेंथ भी डालते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. मेक एन एफर्ट सो दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू अंडरस्टैंड्स दैट दिस गाय इज इंटरेस्टेड और मेरे लिए इसने मेहनत करी है. दिस वुड गो अ लॉन्ग वे in showing your sincerity in that particular person. देखो, बिल की भी बात कर लेते हैं, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देर आर थ्री बेसिक सिचुएशंस जो हो सकती हैं यहाँ पर. सबसे पहली कि यू लाइक द पर्सन दैट यू आर हैविंग डिनर विद, तब तो यू ओनली हैव टू पे द बिल. In case you do not like the person that you're having dinner with, you still pay the bill. Always be a gentleman, a thorough gentleman, and be classy and poised at all times. कोई बात नहीं, कितना डिनर आएगा, 3,000, 5,000, 10,000, that is absolutely okay. It was your decision to go to that restaurant. Take the lead, pay the bill. अगर आपको सामने वाला लगे कि सिर्फ खाने आया है और अजीब अजीब चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन feeding themselves rather than having a conversation, they are distracted, they are absolutely not interested in you, और बस यही सोचा कि यार चल खा पी कर आ जाएंगे, तो लुकिंग एट द सिचुएशन, अगर आप भाग सकते हो तो भागो. अगर बहुत ज़्यादा बिल उसने बना दिया है, एंड इफ इट इज़ एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर, यू कैन डू वट एवर यू कैन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ज़रूरी नहीं है कि आप पहली दो चीज़ों को फॉलो करो, बट येस, ट्राई एंड बी प्रेजेंट, और जितना आपसे हो सके उतना सिचुएशन को डिफ्यूज करें और हैंडल करें. डू नॉट ड्रिंक ऑन योर फर्स्ट डेट्स. इनफैक्ट डू नॉट ड्रिंक ऑन फर्स्ट 2 और 3 डेट्स. बिकॉज क्या है ना, कि आप किसी को अगर शादी के लिए मिल रहे हो ना, तो यू हैव टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम व्हेन यू नॉट ड्रंक. क्योंकि आप दिन में भी बात कर रहे होगे, रोज रात को तो दारू पी के बात नहीं करोगे. वेन एवर यू ड्रिंक विद समवन, तो वाइब बहुत ईजिली मैच हो जाती है. बिकॉज वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आइस ब्रेक हो जाती है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है. तो ड्रिंक करके तो बहुत सिंपल हो जाता है, किसी के भी साथ आपने गुड टाइम स्पेंड करा, सब कुछ करा. हैव द रियल कॉन्वर्सेशंस. देखो कि सामने वाले का इंटेलेक्ट आपके साथ 2, 3, 4 घंटे जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, वो एंटरटेन भी कर सकता है. कैन दी अदर पर्सन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद यू? और अगर हार्ड हिटिंग रियलिटी हो जाए, तो कैन यू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद समवन जिससे आप पहली बार ही मिल रहे हो इन पर्सन, या मे बी दूसरी बार ही मिल रहे हो. ट्राई एंड अवॉइड ड्रिंकिंग एट ऑल कॉस्ट. सी, इंटीमेसी इज नॉट अ बिग डील दीज डेज. जरूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव 10 dates to become intimate with someone. But just hear me out. If the girl becomes intimate with you in the first date, I mean, you can decide to do whatever you want to do, कि आपको शादी करनी है उससे कि नहीं करनी है. बट देन आप यहाँ पे शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट? तो आई वुड सजेस्ट दैट यू अवॉइड इंटीमेसी. बेसिक इंटीमेसी जैसे हैंडशेक और मे बी अ साइड हग, नॉट इवन अ प्रॉपर ऑन फ्रंट जो हग होता है वो वाला नहीं, सिर्फ एक साइड हग. आई वुड सजेस्ट इससे ज़्यादा आप ना करें, सो दैट there is a certain level of professionalism, I would say, in the first meeting.
क्योंकि यू डोंट वांट टू ओवरस्टेप योर बाउंड्रीज, और पता भी नहीं ना सामने वाले की बाउंड्रीज कितनी है, तो इंटीमेसी अवॉइड करें फर्स्ट डेट पर. And finally, one bonus and unpopular opinion. See, masculine and feminine are supposed to survive together. This is how the population grows. This is how the world moves forward. आजकल सोशल मीडिया पे इतना हेट है फॉर गेटिंग मैरिड, एंड ऑन बोथ साइड्स आई वुड से, फॉर वुमेन एंड मेन. देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो एक साइड लेकर बैठे हुए हैं. I mean, the concept of original romanticism that used to exist because of the movies, because of the novels, has almost died now. सब opposite sex के लिए hate लेके बैठे हुए हैं. Life ऐसे नहीं चलेगी. People like me जो कि are for marriage, are for family, who are pro all of these things, इनको ज़्यादा traction नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि नफरत नहीं है ना. Hate is a much more intense emotion than love. क्योंकि लव तो खैर हर टाइम चलता ही है, सबके साथ चलता है, पर जिससे हेट करते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, और अटेंशन भी उसको बहुत ज़्यादा मिलती है. आई वुड सजेस्ट कि अपने आप को न्यूट्रल रखें, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लाइक यिन एंड यांग, both need to move together. So all of this narrative of hate on social media is not gonna take our society further. It is not gonna be beneficial. तो आपको कौन से पॉइंट्स इसमें सही लगे, कौन से आप फॉलो करेंगे? डू राइट डाउन नंबर्स की नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 मुझे अच्छा लगा, या मैं ऐसा तो करता ही था, या मैं ऐसा आगे से इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा. आई एम नॉट सीइंग दिस रिजल्ट, तो शायद ये वाला पॉइंट डालने से रिजल्ट आ जाएगा. Let me know in the comments. Thank you for watching and always stay blessed.